dear student, you are all welcome to Pradeep Sir Biology. Today I may start kariba first year biology, first year zoology. तो zoology रे different branches अच्छी, zoology रे some important points अच्छी, जोड़ो को जाने के तुम्हें zoology को very easy लगेगा और हम सहज रे तुम बुझ पाओगे. तो प्रथम में हमको जानिया पड़िबो what is biology. ता परे हम zoology को जिबा. What is biology? Biology कौन? Biology means it is the study of plants and animals. और हमें कही परिवे it is the study of living organisms. That means maybe the plants and animals. The biology study of plants and animals. That means biology रे तो हम botany भी पढ़िबो and zoology पढ़िबो. That means biology is divided into two parts. तो biology को हमें divide कर दबा दी भागरे गोटे होची botany और zoology. तो हमें botany रो अर्थ कौन? Botany means it is the study of plants. तो botany chapter रे केवल plants विषय रे पढ़िबो एवं zoology रे केवल animals विषय रे पढ़िबो. That means it is the study of plant, study of plant, and zoology is the study of animals. Zoology is the study of animals. तो zoology रे different animals रे different aspect ऊपरे आलोचना करा जिवो वा पढ़िबो. तो प्रथमे हमें biology कथा चिंता करिया. Biology derive from two Greek word. दीटा Greek word रो आसीची biology शब्द derive from two Greek word. Two Greek word. Number one is bios and number two logos. The term biology derived from two Greek words bios and logos. So what is the meaning of bios? Greek word रे Greek language रे bios means life. Life of living organisms or life. Logos means to study. That means it is the study of living organisms. So biology is the study of living organisms. Living organisms रे तो हमें plants भी पढ़ेगा and animals भी पढ़ेगा. The term biology is coined by किए coined करथिले नामकरण किए करथिले biologist को differently, separately, independently भाबरे Lamarck and Treviranus. The term biology was coined by Lamarck and Treviranus. तो लामार्क एंड ट्रेविरानस कॉइन करथिले बा नामकरण करथिले बायोलॉजी टर्म टाकू इंडिपेंडेंटली अलग अलग भाबरे से कॉइन करथिले इंडिपेंडेंटली ओके. तले हम जानि गले बायोलॉजी टर्म को के कॉइन करथिले नामकरण के करथिले लामार्क एंड ट्रेविरानस इंडिपेंडेंटली करथिले टर्म टाकू कॉइन. एंड बायोलॉजी टर्म derived from the two Greek word that is bios and logos. ये भी जानी गले एवं तार definition कुछ कौन? It is the study of living organisms. Living organisms रे all plants भी and all animals होते हैं. तो आगे पढ़िबा zoology. The zoology is the study of animals. हम करे. तो हम स्टार्ट करिबा zoology.
Zoology. The zoology term, the term zoology is derived from two Greek word. Dita Greek word aschi derived from two Greek word. One is zoon and is logos. It dita hoche Greek word and zoon ro artho it means is animal. Animals. And logos ra meaning hochi to study. That means what is the definition of the zoology? It is the study of animals. It is the branch of science which deals with the study of animals. तब कई बार it is the branch of science. It is the branch of science which deals with the study of animals. और हम shortly कही परिबा study of animals. तो zoology दीटा Greek word रो आछि जोटा कि हमें कहलेटा Greek words दीटा Greek word रो आछि जा को हमें कहू zoon and logos and zoon रो अर्थ होछि animals and logos रो अर्थ होछि to study. So what is the definition of the zoology? It is the branch of science which deals with the study of animals. Shortly कहबा study of animals अर्थात ओडिया रे कहले प्राणी विज्ञान. Okay, so who is the father of zoology? Zoology बा प्राणी विज्ञान रो father की अर्थात जनक बोली कहउचंती काहकु आमे प्राणी विज्ञान रो से होचंती Aristotle. Aristotle is regarded as father of zoology. Aristotle is regarded as father of zoology. Aristotle को zoology रो father कहा जाए. Aristotle regarded as father of zoology. Why? Aristotle regarded as father of zoology because first time Aristotle described 500 animal types in his book Historia Animalia. तो Aristotle को गोटे book publish हेतिला जाको कहंती Historia Animalium. से Historia Animalium book से Aristotle 500 animals विषय रे लिखिथिले. এবং से বইটা মধ্যে পবলিশ হইতিলা से बुक्स रो ना होची हिस्टोरिया एनिमलियम. तो सेहिति पई जेहेतु फर्स्ट टाइम एते गुडा एनिमल्स विषय से धारणा देथिले 500 एनिमल्स विषय तेनु ताको आमे कहउचंती फादर ऑफ जूलॉजी. तो व्हाई Aristotle regarded as father of zoology because he described 500 animal types. Describe 500 animals types in his book Historia Animalium. First time सेट पई Aristotle को फादर ऑफ जूलॉजी बोली कहंती बा जूलॉजी रो जनक बोली आमे कहि परिबा. ओके, नेक्स्ट हम आगो को जिबा डिफरेंट ब्रांचेस पर पड़िया जूलॉजी रो ब्रांचेस. तो व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ द जूलॉजी? Branches of zoology. तो आज हमें today we will discuss about the first branch, that is pure branch of zoology. Pure branches.
तेले प्योर ब्रांचेस रे पढ़िबा द जनरल एस्पेक्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. The pure branches deals with the general of aspects of the living organism. So this pure branch deals with general aspect of living organism. तो प्योर ब्रांच रे हमें जनरल एस्पेक्ट पढ़िबा लिविंग ऑर्गेनिज्म रो. तो फर्स्ट हमें स्टार्ट करिबा जे ब्रांच. फर्स्ट ब्रांच स्टार्ट करिबा नंबर 1 मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी. The morphology is the study of external structure of animals. External structure of the animals. The first study of external structure of animals. External structure of animals. That means external structure कहले बाहर रो जति भी गठनिक अछि बाहर जति हम स्ट्रक्चर देखिबा. जेमते look at me. My external feature is which you can see with your naked eye. जहाँ तमे निज आखिरे बा खला आखिरे देखि पारुछो प्रदीप सर करो तले कोन कोन देखि पारुछो. तो एक्सटर्नल जे हम आखिरे देखि परिबा प्रदीप सर को दिरा हाथ अछि, टू हैंड, टू legs, head, two eyes, nose. These are the external features of the Pradeep sir. Just like this, any animals रो कौनसी morphology कहले तार बाहर रो structure को बुझेबो जो गुडी को तमे निज आखिरे तमे देखि पारुछ, which you can see with your naked eye. The structure which you can see your naked eye, that is the external features or external structure, that is morphology also. तो जदि ऑब्वियसली हम जदि कहि पा गोटे प्राणी बा गोटे एनिमल्स रो मॉर्फोलॉजी विषय रे को तो मॉर्फोलॉजी कहले तार बाहर बा एक्सटर्नल फीचर्स गुडी को तमे जोडा देखि पारुछ ताकू करे कहबो. ओके जेमति कहली मो निज आखिरे जहा देखिबा सेटा होची एक्सटर्नल फीचर्स जोटा हमें देखि परिबानी. दीज आर नॉट द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल फीचर्स. तो ये होची स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स व्हिच वी कैन सी विथ नेकेड आई, व्हिच we can see with our naked eye. तले हम निज आखिरे जहां हमें देखि परिबा स्ट्रक्चर्स गोटे एनिमल्स को नजर करले बा देखिले हमें जहां स्ट्रक्चर गुडी देखि परिबा सी होची तार एक्सटर्नल फीचर्स और द मॉर्फोलॉजी. तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ओके नेक्स्ट नंबर 2 एनाटॉमी. एनाटॉमी तले एनाटॉमी ब्रांच रे हमें कोन पढिबा. एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल्स. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स व्हिच वी कैन नॉट सी. इंटरनली जो स्ट्रक्चर उडी थिबो ताको हमें केबे भी देखि परिबाने बिकॉज़ दीज आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी. सपोज मु जदि कहिबी इंटरनल स्ट्रक्चर गुडी का आमो भीतर कोन अछि. इंटरनल स्ट्रक्चर कहिले दे आर मे प्रेजेंट इन द लंग्स, internal structure stomach, liver, heart. These are the internal organs or internal structure which we cannot see. आमे केबे भी देखि पारो नांती से स्ट्रक्चर गुडी को. तले जो अंग गुडी को व जो ऑर्गन गुडी को आम बॉडी भितरे अछि बा आम शरीर भितरे अछि जहा को आमे देखि पारो नांती सेही ऑर्गन को कहिबा आमे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी, और दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. तो एनाटॉमी रे कोन पढाबे इट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल्स. द स्टडी ऑफ internal structure of animals which we cannot see
with naked eye. ताले इंटरनली जो ऑर्गन गुडी का हम बॉडी भीतर अछि ताको हम केबे देखि परिबा नाही बिकॉज़ दीस आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी. तो दैट इंटरनल ऑर्गन्स गुडी को हम कहबा एनाटॉमी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स. तो एनाटॉमी ब्रांच रे तो हम पढियो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल्स. ओके, क्लियर अप टू दिस. नेक्स्ट हम आगु जिबा. नेक्स्ट नंबर 3 हम पढिबा साइटोलॉजी. साइटोलॉजी ब्रांच. साइटोलॉजी the branch cytology. So it is the study of structure and function of the cells and cell organelles. The structure and function of the cells and cell organelles. Study of structure and function of cells and cells organelles. Cell organelles. The structure and function of cells and cell organelles. एगुडी को आमे साइटोलॉजी ब्रांच रे पढियो. साइटोलॉजी ब्रांच इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स एंड सेल ऑर्गन. एट गोटे जिंस जानो स्ट्रक्चर माने कोन एंड फंक्शन माने कोन. स्ट्रक्चर माने यार गठन, यार एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो, इंटरनल हो. स्ट्रक्चर माने यार गठनिक जिंस गुडी को. एंड फंक्शन माने होची कार्य. तेले सेल्स गुडिकर स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज एंड देयर फंक्शन बा कार्य एगुडी को आमे को ब्रांच रे पढिबा साइटोलॉजी. तो साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गन्स. तो एटी गोटे जिंस म कहबी हु इज द फादर ऑफ सेल्स. सेल को प्रथमे की बाहर करथि. तो माने पढिथिबा आगरे भी ओडिया रे भी पढिथिबो. तो साइटोलॉजी रो फादर बा सेल्स को डिस्कवर करथिले कि रॉबर्ट हुक. फादर ऑफ साइटोलॉजी, father of cytology by cells, cytology, Robert Hooke. तले रॉबर्ट हुक is regarded as father of cytology because cells को प्रथमे से ही डिस्कवर करथिले. साइटोलॉजी बा सेल्स को से ही डिस्कवर करथिले. नेक्स्ट नंबर 4 हिस्टोलॉजी. Number 4 branches histology. Histology is the study of tissues. So what is tissue? Tissue माने कौन? The collection of the group of cells that is tissue. अर्थात किछि कोषर समाहार रे tissue formation हिथाय. तो tissue हमें काहू कहबा ना कोष गुडी का समाहार को हमें tissue कहबा. That means collection of group of cells that is tissue. तो किछि कोष को नै कि tissue हिथाय, किछि tissue को नै कि अंग हिथाय बा organ हिथाय. ये कथा तुम आगुर भी जानी थी. तो हिस्टोलॉजी का मतलब कौन ना. हिस्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ टिश्यूज. इट इज स्टडी ऑफ टिश्यूज. स्टडी ऑफ टिश्यूज. तो हु इज द फादर ऑफ टिश्यू. टिश्यू प्रथमे किए बाहर करथिले. टिश्यू रो जन्मदाता किए बा टिश्यू रो फादर होचंती किए. तो father of tissue is father of histology or tissue. Father of tissue. Tissues रो father होचंती मेरी फ्रांकोइस जावियर बाइचेट. मेरी फ्रांकोइस Xavier Weichet. शॉर्टली हमें कहि परिबा MF Weichet. शॉर्टली जति हमें कहबा MF Weichet. MF Weichet. मेरी फ्रांकोइस जावियर बॉम्बे टू पुणे पर्यंत ना लबिची मेरी फ्रांकोइस जावियर Weichet. शॉर्टली जति हमें कहबा MF Weichet. तो मेरी फ्रांकोइस जावियर Weichet और MF Weichet is regarded as father of tissue. Okay, next physiology.
फिजियोलॉजी। तो ये गोटे ब्रांच फिजियोलॉजी हम पढ़ा स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। तो आम शरीर भितर आम बॉडी भितर डिफरेंट ऑर्गन्स अच्छी। ऑर्गन का मतलब अंग। तो डिफरेंट अंग बा ऑर्गन्स गुड़िकर फंक्शन को आम पढ़ा। इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कौन हुए ना ऑर्गन गुड़िक मिसिकी ऑर्गन सिस्टम परमिशन करते। तो जमी कह ऑर्गन मिसिले ऑर्गन सिस्टम हो जाए। तेणु ऑर्गन गुड़िकर ऑर्गन सिस्टम गुड़िकर फंक्शन को आम पढ़ा फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ functions of different organs and organ system. Study of functions of different organs and organ system. That is physiology. Physiology रा पढ़ेगा. Next number 6. Number 6. Genetics. Genetics. Study of heredity and variation. तले genetics is the study of heredity and variation. तो हमको बुझे पड़े फर्स्ट रे व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशन। तो हेरिडिटी जाको हमें ओडिया रे कहबा वंशानुक्रम। हेरिडिटी मतलब the character which transmit from parents to the offspring. The genetics branch is a study of heredity and variation. The first, what is heredity and what is variation? ये तीन जिन सब पे हम क्लियर होगा तापर हमें genetics करते हैं। The heredity माने the character which transmit from parents to offspring. Parent रो अर्थ होची पिता माता and offspring रो अर्थ होची संतान बा children. तो बापा माँ को ठारू जो कैरेक्टर गुडी को पिला छुआ को पाखो को ट्रांसमिट करे तला में कहबा सेटा हेरिडिटी हला बोली। द कैरेक्टर व्हिच ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग दैट इज द हेरिडिटी। ओके, तो हेरिडिटी कौन? हेरिडिटी that means the characters which transmit from parents to offsprings. These are called the heredity. तो जो कैरेक्टर गुडी का पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट होता है दैट इज द हेरिडिटी और वंशानुक्रम। तो एमिति भी किछि कैरेक्टर था पूरा नु अल्प किछि कैरेक्टर जोडा कि पापा मांग ठारो पिला छोको को जाय थे थ्रू द गैमेट्स। जे तो गैमेट ट्रांसपोर्ट हुई फ्यूजन हुई के समय क्रोमोसोम रे किछि कैरेक्टर शुरू को जाय थे बा त जीन गुडी को कैरी करते किछि कैरेक्टर। तो नेक्स्ट होची कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन रो अर्थ होची डिफरेंशिएशंस। तो वेरिएशन मान होची कोन? नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली सिमिलर और अलाइक। इस दुनिया रे एमिति केही नाहति जे कि एग्जैक्टली सिमिलर। तो गोटे ए सन केबे भी कहि परिबनी जे मु भी केबे कहि परिबनी जे मु एग्जैक्टली मो फादर से सिमिलर बोली। एंड गोटे झियो पिला केबे कहि परिबनी त मदर से एग्जैक्टली सिमिलर बोली। तो किछि ना किछि डिफरेंस बा फरक आमे देखे पाइबा बापा मां ठारू पिला को पाखे। तो से जो वेरिएशन थाय इवन इन द ट्विन्स आल्सो ट्विन्स बा जाड़ा पिला को पाखरे बा ट्विन्स पाखरे भी आमे एग्जैक्टली सिमिलर देख पाइबा नै। जतियो लागु तो दी जण समान परिका देखा होचती किंतु बहुत गोडा थियो देखिबो तमे नजर करिकि तार डिफरेंस किछि थिबो।
either it may be the hair color different थाई पारे नले eyes color different थाई पारे नले skin color difference थाई पारे नले height difference थाई पारे नचे behavior difference थाई पारे किछि त difference हमें mark करिबा and that is the variation okay the variation रो अर्थ होछि कोन difference इस दुनिया में ऐसा कौन सा लड़का लड़की नहीं है जो exactly similar to his father and mother केबे फादर मदर सहित एक्जाक्टली सिमिलर तो केही भी सिमिलर ही परिबेनी तो किछि ना किछि डिफरेंसेस रहइबो किछि ना किछि पार्थक्यता रहइबो किछि ना किछि वेरिएशन रहइबो एंड सेही वेरिएशन को यदि हम ओडिया रे कहबा विभेदायन अलगा कोन डिफरेंसेस तो वेरिएशन मींस difference between two individuals. The difference between two individuals जो अलगापन थाए दीटा इंडिविजुअल्स रा डिफरेंस थाए दि जन को भितरे सेटा होची वेरिएशंस तो ए हेरिडिटी एंड वेरिएशन को लेके जेनेटिक्स देख है तो जेनेटिक्स रो फादर की हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स यदि एठी हम फादर ऑफ जेनेटिक्स देखिबा तले फादर ऑफ जेनेटिक्स होचोती कि जीजे मेंडल फादर होचंती जीजे मेंडल अर्थात ग्रीगर जोहान मेंडल रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स तो जीजे मेंडल was very much fond of or interested for the cross breeding of the plants. Actually, जीजे मेंडल जने monk थिले. He was monk in the monastery of Austria in Rome. तो ऑस्ट्रिया रे जने monk थिले अर्थात से जने आश्रम रे सन्यासी थिले जीजे मेंडल. But he is a very interested for the cross breeding of the plants. Plants रो cross breeding ऊपर बहुत interested थिले. ये प्लांट को नहीं कि से प्लांट रे क्रॉस करबा से प्लांट को नहीं कि ये प्लांट रे क्रॉस करबा एटा ताकर बहुत इंटरेस्ट हला से आश्रम रे रही कि मोनास्ट्री रही कि ए सब जिन चोरी करथिले एवं मते सक्सेसफुल हेथले बी प्लांट रे तो ताको एक्सपेरिमेंट रे प्रथम प्लांट ला पी प्लांट बा बुटो मटर गछ रे से प्लांट करिथिले या विषय रे तमे सेकंड ईयर रे पढिबो टोटल्स जेनेटिक्स रे तो जीजे मेंडल होचंती जेनेटिक्स रे फादर ओके नेक्स्ट तो number 7 evolution तो evolution होची कॉल चेंजेस जिमती evolution होता होची कॉल चेंजेस origin of new species from pre-existing ones by slow and gradual changes अर्थात मु एटी गोटे कहि भी आगे लिखि दिए स्टडी ऑफ और origin of new species from pre-existing one by slow and gradual changes तो गोटे नुआ प्राणी बा नुआ स्पेसीज रो उद्भावन हबा बा सृष्टि हबा कोट फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग वन स्लोली ग्रेजुअली बहुत समय लागि थाए मते गोटे नुआ स्पेसीज टे फॉर्मेशन होबे तब जेटी गोटे मु गुड एग्जांपल देबी आमे माने वी आर द ह्यूमन बीइंग्स we are coming from आम जो ancestor रहिचंती आमे कोठो आछंती we are coming from the monkeys gorilla and chimpanzee that means apes पाखु आछंती we are coming from the monkeys family रा आछंती तेनु आमे केमती आछंती
ड्यू टू इवोल्यूशन माने ग्रेजुअल चेंजेस हे के स्लोली स्टेडीली चेंजेस हे की बहुत गुडे कैरेक्टर गुडी का चेंजेस हे की लास्ट को आमे सुंदर ह्यूमन बीइंग सब परमिशन जंती बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये जो नुआ स्पेसिस मांकड़ो मनिष हे गला या को भी आमे इवोल्यूशन कहबा एंड इवोल्यूशन इज गोइंग ऑन। इवोल्यूशन एबे भी चली छी एबे भी तमे नजर करथबो देखियो ह्यूमन बीइंग मानकर हाइट टिके छोट छोट हे गलानी। आगुरु तमे देखिथबो ह्यूमन बीइंग मानकर हाइट सब बड़ बड़ थिला स्कूल रे भी पढुथला वाला पिला माने सब बड़ बड़ हाइट हे किले बड़ देखला आडको कोन लागुतले ने बहुत बड़ पिला किंतु एबे लागुची जे स्कूल कोन कॉलेज रे छुआ गुडे भी छोट छोट हे गेलेनी अर्थात देखिबो बहुत छोट छुआ भी कॉलेज पढिलेनी। एबे तमे देखिबो मेडिकल सब डॉक्टर माने आछथि निशदाडी मानते कोन हेची पूरा कोणिया वयस रे छोट छुआ वाले देखाउछथि आछथि बट आगुरु डॉक्टर माने तो डरी होतिले एते बड़ पेट काढी के आखी काढी के बसथि हेलो कोन हेची तोर तो एमिति भी डॉक्टर देखाउतला हमको डर लागुतला अरे मोर पेट बथा होची कहया कहले मो मुंडो बथा होची कहि दोतलो। तो एबे भी इवोल्यूशन होची इसका मतलब एबे भी इवोल्यूशन होची एवं लोक माने आस्ते आस्ते छोट मोदे हे गेलेनी खुदर खुदर सुबे गेलेनी। तो एमिति भी टाइम आसी परे जे सब मनिष माने छोट छोट हे जो बट ब्रेन टा टैलेंट हे तो सा हे तो जेमिति हम मंकडर मनिष होचे सेमिति सब एनिमल्स कर इवोल्यूशंस बाय ग्रेजुअल चेंजेस सब घटुची इवोल्यूशन होची चेंजेस होची। तो चेंज हे लास्ट गोटे न्यू स्पेसिस फॉर्मेशन हुई जेमिति कि मंकीज पाखरे विभिन्न चेंजेस है कि ह्यूमन बीइंग रे कन्वर्ट हे गले। तो ए प्रोसेस ता सडन प्रोसेस नु इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस इति पे टाइम लेके। तो जो हम आसिले द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसिस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन मींस आमे मंकी जो आछंती तो स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस रे आछंती थ्रू टाइम। तो बहु वर्ष लागि पारे एथे पे या को हम इवोल्यूशन कहउछन ओडिया रे कंचा ओडिया रे कहबी या को हम कहबा विवर्तन। ओके नेक्स्ट ब्रांचेस नंबर केते 8 बते नंबर 8 एंडोक्राइनोलॉजी Endocrinology is the study of endocrine glands or the ductless gland. It is the study of endocrine gland और या को हमें कहउछन ductless gland study of endocrine gland that is endocrinology study of endocrine gland that is endocrinology। तो एटी तो endocrine gland जो स्टडी होची endocrine gland तो प्रथम हमें जानिबा व्हाट इज ग्लैंड तापर endocrine gland कथा जिबा ग्लैंड कोन व्हाट इज ग्लैंड मींस व्हाट ग्लैंड कोन तो सिक्रेटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी आम शरीर रे क्षरणकारी अंग गुडी को हमें कहबा ग्लैंड। ओके क्लियर क्षरणकारी अंग क्षरणकारी माने जो ग्लैंड बा जो ग्रंथि रु क्षरित होई थाए ताको हमें ग्लैंड कहबा। तो सिक्रेटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी आम शरीर रो सिक्रेटरी ऑर्गन को हमें कहबा ग्लैंड। मन रखि था ग्लैंड मींस सिक्रेटरी ऑर्गन of our body called gland. Okay, glands may be different types. जदि हमें कहबा gland कोन कोन अछि त gland different type रो अछि। तो gland हमें कहि परबा exocrine gland next endocrine gland number 3 that is heterocrine gland तो ग्लैंड रो अर्थ होची सिक्रेटरी ऑर्गन इन ग्लैंड में भी 3 टाइप्स इट हम देखुचंती एक्सोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड।
तो एक्सोक्राइन ग्लैंड माने कौन? द ग्लैंड व्हिच सीक्रेट्स एंजाइम्स, जो ग्लैंड गुडी को एंजाइम सीक्रेशन करंती ताको हमें कहबा एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंड दीज हैव डक्ट्स, एमान पर डक्ट्स थाए। तो गोटे एग्जांपल दोची एक्सोक्राइन ग्लैंड रो, जेटा कि सीक्रेट ऑफ सालिवा लाळ, सीक्रेट ऑफ स्वेट झाड़, सीक्रेट ऑफ लुह। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड एग्जांपल कहले इट मे बी झाड़ एंड इट मे बी लाळ, झाड़ लाळ एंड स्वेट, झाड़ लाळ एंड टीयर्स, अर्थात हमर झाड़ हो, हमर लाळ हो कि बा आखिर लुह हो, एगुडी को होची एंजाइम्स। एंड दिस सीक्रेट्स यर क्वांटिटी टिके अधिक हुए एज कंपैरिजन टू द एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, आमे एटी पढिथिले स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, तेनु एंडोक्राइन ग्लैंड को टिके आमे अधिक जिबा। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड गुडी को सीक्रेट करंती हार्मोन्स। द ग्लैंड व्हिच सीक्रेट हार्मोन्स दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। मन रखिथा, जो ग्लैंड गुडी को हार्मोन सीक्रेशन करंती ताको कहबा एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कोन करे? सीक्रेट्स हार्मोन, सीक्रेट्स हार्मोन्स। डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स सब हम बॉडी रे थाए, वैरायटी हार्मोन हम बॉडी सीक्रेशन हुए। जो ऑर्गन बा जो ग्लैंड टी हार्मोन सीक्रेशन करि थाए ताको हम कहउचंती एंडोक्राइन ग्लैंड। एंड सबले मटता एंडोक्राइन ग्लैंड रे डक्ट न थाए, these are the ductless gland, these are not ducts, these are ductless, endocrine glands are ductless। क्वेश्चन आस्तो माइंड सर डक्ट माने कोन? तो डक्ट रो अर्थ होची कोनोसी पाइप जहा सर्जरी से पोरिंग करते तार सिक्रेशन ता। सपोज ये होची गोटे ग्लैंड, सपोज ये ग्लैंड एटी होची सिक्रेशन अछि बा हार्मोन अछि, यार कोनोसी डक्ट जेमति कि एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट थाए एवं तार सिक्रेशन डक्ट माध्यम माने से पोरिंग करि थाए। इट इज द चैनल, इट इज द डक्ट, इट्स अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एलिमेंटल स्ट्रक्चर जो कि थ्रू व्हिच द सिक्रेशंस पासेस हेता एवं पोरिंग मध्ये हेता। तो एंडोक्राइन ग्लैंड रो कोनोसी डक्ट्स नाही बा एमितिका कोनोसी पैसेज बा ए जो सब्सटेंस बा जो हार्मोन्स गुडी को नवा पई कोनोसी प्रकार चैनल्स न थाए। तो हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड डायरेक्टली डिफ्यूज विथ द ब्लड, डायरेक्टली रक्त रे मिसि जाय। तो हार्मोन्स गुडी को ब्लड रे डिफ्यूज हेयांती डायरेक्टली, तणु तार कोनोसी डॉक्टर आवश्यकता ही पड़े। तो व्हाट इज हार्मोन? जदि हमें कहउचंती सीक्रेट करते हार्मोन, तो हार्मोन माने कोन? हार्मोन इज ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस एट वन पार्ट ऑफ द बॉडी, हम शरीर गोटे पार्ट रे प्रोडक्शन हुए, बट दैट कैरी टू द टारगेट ऑर्गन थ्रू द ब्लड सर्कुलेशंस। रक्त संचालन माध्यम रे हार्मोन को करि थाए गोटे टारगेट ऑर्गन रो जोटे आवश्यक थिबो ना, गोटे जो ऑर्गन पाखु गोटे पर्टिकुलर जो पॉइंट रो नहीं कि से टारगेट ऑर्गन को जाई थाए। तो हार्मोन रो अर्थ होची कोन? इट्स अ केमिकल सब्सटेंस। जे मु तुम कहिबि ती हार्मोन विषय, हार्मोन्स रो डेफिनेशन होची, हार्मोन कैन बी डिफाइंड एज, the chemical substance which produce at one part of the body, which produce at one part of body and carried to target organ through circulation, ब्लड सर्कुलेशन माध्यम रे से टारगेट ऑर्गन को जाई था। तो एठी हम जानि गले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हार्मोन। हार्मोन इज ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस एट वन पार्ट ऑफ द बॉडी, हम शरीर रो कोनोसी गोटे पार्ट रे से प्रोडक्शन होतबो एंड दैट कैरी टू द टारगेट ऑर्गन, जोठी हम सर आवश्यकता थिबो हार्मोन रो से जगह को से हार्मोन टा चली जबो थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, रक्त ताकू नै कि सेठी पहुंची जबो।
तो आमर जो हार्मोन रो जो डेफिशिएंसी थिला बा हार्मोन रो रिक्वायरमेंट थिला तारा फुलफिल ही जिवो तेणु हार्मोन टा होची गोटे केमिकल सब्सटेंस सेही हार्मोन कोड प्रोडक्शन हेता है एंडोक्राइन ग्लैंड रो प्रोडक्शन हेता है क्लियर तो एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रेशन करे जे तुमे जानि बोदी एग्जांपल सर दियंतु हार्मोन्स रो तले ग्रोथ हार्मोन कहि परिबा प्रोलैक्टिन हार्मोन कहि परिबा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहि परिबा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहि परिबा डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स गुडी का हमरो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेशन हेता ओके थैंक यू नेक्स्ट आमे जिबा एंडोक्राइनोलॉजी परे नंबर 8 वाला नंबर 9 paleontology 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 is the study of fossils study of fossils तो fossils का मतलब कौन what is fossil fossil होची dead remains of the plants and animals which buried in the earth long ago बहु वर्ष पर्यंत यदि प्लांट्स एंड एनिमल्स रो देहावशेष बा मृतावशेष गुडी को पोती ही जाए दैट कन्वर्टेड इनटू द फॉसिल्स जको हम ओडिया रे कहउछथि जीवास तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हमें पैलेओंटोलॉजी ब्रांच रे पढिबा ओके नेक्स्ट नंबर 9 नंबर 10 ना नंबर 10 पैलेओंटोलॉजी मेराइन जूलॉजी Marine zoology study of marine animals that is marine zoology study of marine animals अर्थात मेराइन रे बा समुद्र रहउता विभिन्न प्राणी अछन डिफरेंट एनिमल्स अछंती जेते सब एनिमल्स गुडी को मेराइन बा समुद्र रे देखबो पाइबा सब गुडी को हमर को ब्रांच रे जीवो मेराइन जूलॉजी the study of marine animals that is marine zoology next number 11 microbiology तुम लिवेरी लिख दो नंबर 11 microbiology is the study of microorganisms study of microorganisms microorganisms ro arth ko what is the meaning of microorganisms microorganism is a very minute organisms which we cannot see with naked eye these are present everywhere but we cannot see with our naked eye that means micro अति सूक्ष्म अणुजीव को हमें कहया microorganisms जो गुडी का हमें खाली एकरे मते देखि परिबा नाही तो this microorganism includes that is bacteriology include bacteriology which is study of bacteria virology study of viruses so these bacteria and viruses are included in the microorganisms because these are very minute we cannot see with our naked eye but these are present everywhere सब जगह माने अछंती बट हम केबे देखि परिबा नाही सेई गुडी हम कहया माइक्रोऑर्गेनिज्म बा क्षुद्र अति सूक्ष्म अणुजीव तो सेई क्षुद्र अति सूक्ष्म अणुजीव गुडी को हम को ब्रांच रे पढिबा दैट इज माइक्रोबायोलॉजी क्लियर अप टू दिस नेक्स्ट नंबर 12
12. The 12 branches is ecology. Ecology. Ecology is the study of interrelationship between environment and organisms. Study of interrelationship between organisms and environment. The organisms, that means different plants and animals, and environment भितर जो relationship ता थाए ताको आमे कहबा इकोलॉजी. तो और हमरो environment सहित living organisms रो relation बहुत निबिड़ थाए. अर्थात we cannot live or exist without our environment. हम environment व्यतीत बा environment को छाड़ी के आमे के बच परिबा किबा environment भी हम ऊपर किछि मात्रा डिपेंड करथाय. तेणु environment and organism को इट मे बी plants and animals must be related थांती से माने इंटर रिलेशन ताका भितर थिबो. जेमति कि आमे ऑक्सीजन बिना बच परिबा न. ऑक्सीजन वी आर गेट फ्रॉम द plants and plants कार्बन डाइऑक्साइड दरकार करे फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड हम पाखरु जाय. तो एमिति बहुत किछि अछि जोडी इंटर रिलेशनशिप रहउची organisms and environment सहित, and that is the ecology. से ब्रांच इकोलॉजी ब्रांचेस गुडी को पढा जिवो. तो स्टूडेंट्स आज तो समय गेलेनी. आज पई हम एतिक रखिबा. आशा करू जे समस्त बुझिथिबो. ताकू समस्त रिवाइंड करी देखिबो एवं बुझिया को चेष्टा करिवो. नेक्स्ट क्लास रे हम आगु भी ब्रांचेस को जिबा एंड ब्रांचेस गुडी को सरी जिबा परे हमें चैप्टर को जिबा. ओके, टुडे इज दिस मच. थैंक यू.